A rally of thousands of tractors from four borders. Surrounding a 135-kilometer arc around the national capital. Threatening that this is a rehearsal for 26th January. 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे सारी, और जो भी ट्रैक्टर अब चलेंगे वो तिरंगे के साथ में 26 जनवरी में शामिल होंगे। Farmers' massive show of strength before the 9th round of talks with the government. Will the government finally blink under pressure? Top story on To The Point this evening. The question is, will the government blink? Because the farmers are clearly not. Good evening. I'm Preeti Chaudhary. You're watching To The Point. So what really happened today, the farmers said, was a precursor, that it was just a possible dry run for the big mega event of 26th January. What we did see today, for our viewers who are not from the national capital, so where all we've seen our farmers squat in protest, blocking borders. There are major four borders. They got together and formed a rally of tractors. Thousands of tractors were on the roads today in protest. They want the government to take back all three farm laws. All of this happening on the eve of the 9th round of talks. Thousands of tractors with lakhs of farmers from across four borders of protest, with a women contingent in tow and the national flag fluttering, hit the protest road in a massive show of strength on the eve of the 9th round of talks with the government, with the one demand of total repeal of farm laws. भाई 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो ये फ्रंट पे यही झंडा रहेगा अब तिरंगा। 1 लाख झंडे का ऑर्डर दे रहे हैं हम कि 1 लाख झंडे हम बनवाएंगे और लोगों को देंगे। Across four protest sites along a 135-kilometer 6-lane arc that partially surrounds the national capital region. Well, it was filled with tractors today in a rally against the new farm laws. The rally with thousands of tractors was synchronized by a farmer team on ground, making sure there was coordination. As the farmers made it amply clear, this was just a mere dry run. The star event would be the 26th of January. जब तक हमारे काले कलूर रद्द नहीं होंगे, हम छोड़ के नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे भी साथ हैं, बीबियां भी साथ हैं, माता भी साथ हैं। हम अपने परिवार नाल लेके आए हैं। जितना टाइम साडा लगूगा, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। An ominous warning for the government that prepares to meet farmers for the 9th round of talks tomorrow. Will the government finally blink? Because the farmer is not. Making it clear, from the borders they will march to Rajpath in protest, joining the parade on 26 January. With Moshmi and Kunal Kumar, Bureau Report, India Today. All right, let's cut across to our guests this evening. I have Chaudhary Pushpendra Singh, Kisan Shakti Sangh President. I have Savit Malik, Kisan Union President. And I have Mr. Tom Vadakkan, BJP spokesperson. Thank you, gentlemen, for joining us. Mr. Vadakkan, the fact is the farmers are now very clear. We saw the massive show of strength today. They are not going to back down. Will the government tomorrow attempt at least to address the MSP, the biggest sticking point where the farmers have come with?
Priti, what the government will do or will not do is not for me to predict at this juncture. The government is bent backwards. They have had meetings and that's going on. But I think it is not, it's not a good signal to kind of have these kind of, threats that, look, this is only a rehearsal, we are coming with a greater show on the 26th. Now, that all kind of threats is a familiar tactics, but the point is it's not healthy in democracy. Ultimately, it is dialogue that helps. It is a two-way traffic. You suggest something, I hear you, and I make suggestions, and then the conversation goes on, and finally a decision comes up. It takes time, yes. But I think this kind of pressure tactics is a little unfortunate. But I'm very happy that we have so many tractors. But the state from where I come from, Kerala, where the leftist government is there, they were opposed to tractors, You believe me, because that was part of the reforms. And now so many tractors are only in the state of Punjab and Haryana. Very good. I'm very happy. Uttar Pradesh also, sir, you missed one state. Yeah, okay. So be it. And there are so many good tractors, and there are people who are actively involved in agriculture. I'm very happy. They're all very prosperous. Be what it may. But we need to have a two-way dialogue, where you come one step forward and I come one step forward. We talk, we meet, and then finally a solution is found. That's a democratic methodology that we go about. But anyway, whatever is happening on the 8th, 2 o'clock. I think the meeting is scheduled for. The government will do everything possible, I'm sure, to ensure that there is a conclusion to this issue. And I think the heart and mind of the government is with the farmer. There's no denial. Whatever people may say that we are against this and we are against that, believe me, the entire party, the entire government, we're all in it. We will try and help. We'll walk that extra mile, Preeti. Believe me, Okay. You may ride a tractor or a motorcycle, be what it may. But let me tell you, we'll walk that extra mile to ensure that the farmers and the lifeline of the farmers are maintained. All right, साबित मलिक जी, बात जो वडकन साहब यही बात कर रहे थे कि बंदूक की नोक पे समझौता थोड़ा ना हो सकता है। आप कैसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि 26 जनवरी को देखिए क्या होगा राजपथ पे। नहीं, किसान बंदूक को फैसला कर ही नहीं रहा। किसान अहिंसक आंदोलन अपना कर रहा है, और जो हमारा पर्व है 26 जनवरी का, क्या इसमें किसान हिस्सा नहीं ले सकता? इसमें तो पूरे देश का कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है, और हम लोग भी हिस्सा लेने चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार पे? भाई पूरे देश का ये है, त्योहार है, तो किसान क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले सकता है? हम लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाल किला नहीं देखा है, कभी ये हमारा त्योहार देश का नहीं देखा है। अगर वो लोग देख लेंगे तो इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से वहां जाएंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। तो आपको यकीन है कि कुछ होने नहीं वाला? कल जो टॉक्स हैं उनमें कुछ नहीं निकलने वाला? नहीं, बातचीत होगी, वो सरकार के अधीन है। किसान अपने मुद्दे लिखित रूप में दे चुके हैं कि हमको तीनों कानून रद्द चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। अब ये सरकार के हाथ में है कि सरकार अपने यहाँ पे उसकी सहमति लेके आए, अपने कैबिनेट में प्रस्ताव रखे या जो भी करे। ये सरकार के हाथ में है, किसान के हाथ में कुछ नहीं। किसान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। मालिक साहब, मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी, पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जब आपने बोला कि इसमें हर्ज क्या है, बंदूक की नोक पे इसीलिए है मालिक साहब क्योंकि आप तो अगर ये कानून मान लीजिए कल वापस ले लिए, क्या तभी भी किसान 26 जनवरी को परेड करेगा या तब नहीं करेगा? नहीं, बहुत सारे किसान यहाँ रहेंगे जो 26 जनवरी देखकर ही घर जाएंगे। वो अब मन बना चुके हैं, चाहे कल सरकार कुछ भी करे, चाहे कानून वापस ले ले। कहीं इसमें बंदूक की नोक की बात ही नहीं है। कहीं किसान के पास बंदूक कहाँ है? बंदूक तो सरकार के पास है। किसान तो दिल्ली अपना हक मांगने आया था। बंदूक सरकार ने चलाई, पानी सरकार ने चलाया, सड़कें सरकार ने खोदी, बैरिकेड सरकार ने लगाए। किसान तो शांतिपूर्वक तरीके से बढ़ रहा था, भाई हमारे जो मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए। लेकिन जो भी अवरोध पैदा कर रही है सरकार कर रही है। किसान ने क्या अवरोध किया? अभी तक एक भी किसान ने कोई गलत बात नहीं की है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठा हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन इतनी शांति से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
आज तक इतना बड़ा आंदोलन इतनी शांति से कभी नहीं हुआ है। हमारे 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। क्या सरकार इतनी निर्दय हो गई है कि उस पर अफसोस भी नहीं जता सकती? उनकी आत्मा की शांति के लिए दो शब्द नहीं है सरकार के पास में। ये लोग खिलौना बना दिया है किसानों को। पुष्पेंद्र सिंह जी, इन लोगों को अगर जरूरत कल होती है तो ये हमारे पास जाते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, जो किसानों ने किया है, अब ये तो हर किसान यूनियन अब यही कह रही है कि अब देखिए 26 जनवरी को क्या होगा। क्या आपको लगता है कि ये मतलब कैसे समझौता होगा? नहीं, देखिए प्रीति जी, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है और लंबा चलता है तो उसमें अलग अलग फेज होते हैं। किसी दिन भूख हड़ताल भी होगी, किस दिन प्रदर्शन होगा, किस दिन कैंडल मार्च होगा, किस दिन ट्रैक्टर मार्च होगा। तो ये उसके फेजेस हैं। इसको लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से करने का अधिकार आंदोलनकारियों के पास है, पहली बात। दूसरा, जो मूल मांग थी उसको यदि सरकार मान लेती, पहले ही घोषित कर सकती थी, तो शायद वार्ता की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हमने बार बार कहा था कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बाध्यकारी बनाइए। जो 23 फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है, यदि उसको सारे देश में कोई व्यापारी या सरकारी या कोई भी व्यक्ति उस रेट से नीचे, जिसको हम सरकारी रेट या एमएसपी रेट कहते हैं, उससे नीचे ना खरीदे, क्योंकि वो ऐसा रेट है जो सरकार स्वयं घोषित करती है कि किसान की लागत मेहनत के बाद कम से कम इतना पैसा किसान को अवश्य मिलना चाहिए। तो यदि उसको बाध्यकारी मैंडेटरी बना दे, कानूनी जमा पहना देते, तो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस इन जो है आंदोलन, पहली बात। दूसरा, जो कानून 3 बनाए हैं आपने किसानों की सहमति लेकर के जब नहीं बनाए और आपने वो पास नहीं करते, किसान उसके प्रति शिकायत करते रहे, आंदोलन करते रहे, तो कम से कम यदि आप चुनी हुई सरकार है, यदि आप उसको रिपील नहीं भी करते तो आप उसको सस्पेंड कर सकते थे, उसको स्टे कर सकते थे कि हमने स्टे कर दिया है, कमेटी बना दी है, कमेटी इस पे जब निर्णय लेगी, और एमएसपी हमने लागू कर दी है। तो ये 2 मांगे जिस प्रकार इन्होंने पहले मांगनी है, हालांकि वो कम वजन की मांगे थी, इसी तरह इनको किया जा सकता था। ये बात हमने सरकार के सामने भी रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की समझ में अभी नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, आंदोलन तेज होगा तो शायद सरकार को समझ में आए। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं ये थ्रेट ही है ना फिर पुष्पेंद्र जी, आंदोलन तेज होगा तो सरकार को समझ में आए। देखते हैं आगे। मैं आपको बता दूं कि ये वार्ता भी अब हुई है जब ये आंदोलन हुआ है, उससे पहले वार्ता ही नहीं हो रही थी। नहीं, ये सही बात किया, कोई वार्ता नहीं हुई, ये सही बात नहीं हुई, सही बात है। वो जो 4 करी इन्होंने अभी। जी जी जी, तो वार्ता जब ये करेंगे आंदोलन के बाद, तो आदमी की समझ में आता है कि मानेंगे तब जब आंदोलन तेज होगा। ये तो स्पष्ट है सरकार का जो रवैया रहा है। टॉम वड़क्कम साहब बैठे हैं, इन्होंने भी पहले ऐसे किया था। बाद में बाबा रामदेव को लेने के लिए 5 मंत्री बैठा दिए वहां, बाद में लाठीचार्ज भी कर दिया है। तो सारी हथकंडे सरकारें अपना, जन और जन सैलाब जब बढ़ता है तो जैसे इनकी जवानी रह गई थी, मिस्टर टॉम बडकन, द पॉइंट पुष्पेंद्र सिंह जी, सिंह साहब एक सेकंड, Tom Badakan, the point that even both the farm union heads are making is quite clear. The fact is you never quite listened to them. They had to come onto the roads, and I can give you the whole trajectory of events, sir. 3 meetings happened before the farmers actually hit the streets in protest. In all those 3 meetings, 2 out of 3, there was no agriculture minister. So they've understood that the only way to get a reaction from this government is to corner them, is to coerce them. Well, I think they aren't onto the negotiation table. They were there, 40 organizations were called, and there was a negotiation going on. The 7th or 8th round, that it is 9th, I think, Preeti, if I'm not 9th will be tomorrow, sir. Yes. Tomorrow, yeah. 9th round. So there has been a conversation going on. It's not a monologue, you know. The government is not talking to itself. It's talking to these farmers. And the point here is, when they started, how they started are not the issues. The issues are being addressed. Now, the question of MSP has they've gone into depth of it. They're saying fix an MSP. Now, how can you fix an MSP? This is a dynamic process. Today, the price is 100. Day after tomorrow, I'm just naming it. Say the price goes to 200. If I fix it for 100, then this has to be checked on every year. And it has to be, it's a dynamic process. And the track record of the NDA government is they have been giving the highest MSP during their period. I think there's no contradiction. These are statistics in public domain. So I'm not into that. But let us have a softer attitude. Let us have it is a give and take situation. The government also has to
have a breathing space. You have a bird flu in town. You have a But vaccine no, Mr. program. Wadekar, that is unfair. You're saying breathing space. It's 44th day, sir. मतलब 40 के ऊपर दिन हो गए, इससे ज्यादा कितनी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए सरकार को? But the fact is 6% प्रीति 6% है जो MSP से अफेक्टेड है. पूरा देश का हालत, ये मैप जो खोलोगे तो पंजाब, तब वही तो कह रहे हैं फार्मर्स कि सबको मिलना चाहिए. Everyone should get MSP. Why shouldn't farmers benefit the way Punjab farmers are benefiting? That is what they are saying. But the question is, sir, you are saying that MSP has become a sticking point and the government has been trying to talk. Last meeting, sir, MSP wasn't even discussed. 8th round of meetings, MSP was not discussed. No, that is because when we had discussed it in the earlier meetings, hello? Do you Go hear ahead, me? sir. Yes, I can hear you. When we had discussed in the earlier meetings, it was discussed threadbare. And they had almost, there was a kind of a consensus that had emerged. So every meeting, the same thing is not repeated. Then they'll say, look, you're stuck on something. The electricity bill was discussed. There was other issues Sir, but about what consensus? There was no consensus that was reached, sir. There was a consensus that was reached to an extent which was not publicized at that point of time. They came out with the thing that this bill has to go off. But the point is, if every activism begins with withdrawal of bills, no parliamentary law will. But sir, there's a flip side to it. You block all roads. You block all roads. You Mr. have a tractor Wadekar, march, you're totally right, and sir. then no laws can be passed. Sir, in you're Parliament. totally right, and I'll bring in our farm leaders. You're totally right when you say, but the fact when you say that you can't challenge laws like that, but laws also need to be then made with participation. 500 farm unions in this country, sir. Not one farm union was amended, yes. Not one farm union was on the table where this law was discussed. When the bill was discussed, the ordinance was cleared and a law was made. Not one of those 500, one farm union was there, sir. More so, it was done in the times of a pandemic where there's a complete trust deficit at the back of it. We are talking, Preeti. We are talking. But sir, after you've already made a law, but check into the clauses आप of इनसे it. ये पूछिए We are not कि on ये a बाहर कुछ concrete बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं. मिस्टर मालिक wants to come in. मालिक साहब बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम ये कहते हैं जो भी हमारी वार्ता होती है, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए. पूरा देश देखे, पूरा वर्ल्ड देखे कि ये अंदर क्या बात करते हैं और बाहर क्या बात करते हैं. ये पता लग जाएगा सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहा है. जो भी मीटिंग होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, पूरा देश देखे कि ये लोग अंदर क्या बोलते हैं और बाहर क्या बोलते हैं. दूसरा ये बात करते हैं मलिक जी, ये एक लाइव टेलीकास्ट इसका भी होना चाहिए जब आपका कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ बैठते हैं और आप दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को एनकरेज करते हैं जो किसान के साथ कोई संबंध नहीं है, वो लोग उधर बैठे रहते हैं. अल्ट्रा लेफ्ट के लीडर भी बैठे रहते हैं. उसका भी लाइव टेलीकास्ट एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए. मलिक साहब बोलिए. रहे मलिक साहब, दोनों तरफ और बैनर छोड़कर कोई भी किसान बनकर अगर एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा. मलिक साहब बोलिए. हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हमको अपनी मांग मांगनी है, हमको हर आदमी की जरूरत है. लेकिन हमने ये कहा है कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना टोपी, झंडा और बैनर छोड़कर हमारे पास किसान बनकर आ सकता है. आप भी आइए, कल हम आपका भी स्वागत करेंगे. हरसिमरत कौर जी आपके यहाँ मिनिस्टर थी, उसको आप नहीं समझा पाए, उन्होंने रिजाइन दिया. वो किसानों के साथ खड़ी है, वो क्यों ना खड़ी हो. आपके यूपी के विधायक है अवतार सिंह भडाना, मुजफ्फरनगर से, उन्होंने रिजाइन दिया है, वो किसानों के आंदोलन में है. क्या वो किसान नहीं है? आपके गुजरात के एक मेंबर है पार्लियामेंट के, उन्होंने रिजाइन दिया है. अगर आप लोगों में दम है, आप लोग भी किसान के साथ जमीन में आके बैठिए, आपको पता तो लगे कि यहाँ कितनी ठंडी है, कितनी बारिश है और किसान कैसे बेहाल है. आप लोग तो आराम से गद्दों में सो रहे हैं, हीटर में सो रहे हैं. ओके, मलिक साहब बोलने दीजिए, वाडेकन साहब को बोलने दीजिए. यस मिस्टर वाडेकन, गो अहेड. मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ संबंध रखें, लेकिन कैनेडियन इंटरफेरेंस कहां से आ गया भाईजान? कनाडा से आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ रहा है. अल्ट्रा लेफ्ट को बिठा रहे हैं कि राइट्स में जो लोग हैं उनको छोड़ने का प्रस्ताव रख रहा है. भैया किसान की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात करिए. हम चाहते हैं किसानों की बात जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं दूसरों के लिए. वहां के आदमी हमारी मदद करने नहीं आ सकते. मोदी जी जो जेल में है दिल्ली में, एक एक करके बोलने दीजिए. वाडेकन साहब को बोलने दीजिए. मलिक जी आपने अपना वो रख दिया, आप क्या कह रहे थे? करने चाहते हैं तो ये किसान का संबंध में कोई बात है ही नहीं.
आप वो बात करिए जो किसान के साथ। पर द पॉइंट इज पुष्पेंद्र सिंह जी, किसान के संबंध में सबसे बड़ी बात तो एमएसपी है, जो अभी सरकार नहीं मान रही है और नहीं लगता कि मानेगी कल, जैसे अभी लग रहा है। तो फिर क्या पुष्पेंद्र जी? नहीं, देखिए, एमएसपी की जो बात है, जो वड़क्कम साहब ने कहा कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, उसको भी समझना आपके दर्शकों के लिए आवश्यकता है। जीएसटी भी डायनेमिक प्रोसेस है। जीएसटी काउंसिल में रोज आप जो है चेंज करते हैं, जो जीएसटी के रेट्स है, टैक्स के रेट्स है। तो इसमें हमारा कहना यह है कि जो एमएसपी 23 फसलों की हर साल सरकार घोषित करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर पे उस साल के लिए लागू हो जाएगी, ये कहना है। इसमें डायनेमिक कहाँ की बात आ गई? जब अगले साल बढ़ेगा रेट तो वो बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको जो है आराम से लागू किया जा सकता है। और दूसरा मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर पे लागू करने का जिस तरीके से मिनिमम वेजेस एक्ट मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू किया हुआ है, अपनी खुद की स्टाम्प ड्यूटी की सुरक्षा के लिए जमीनों के सेक्टर रेट सरकार ने घोषित किए हुए हैं। अभी चीनी का रेट जब गिर गया था तो 31 रुपए का एक्स बिल गेट प्राइस घोषित किया हुआ है। ऐसे तमाम उदाहरण है जो मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम सरकार करती है। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इसको किया जा सकता है। और आपको कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, ये प्राइवेट सेक्टर को देना है। आप अपनी जो परचेज कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन बाकी जो परचेज है वो प्राइवेट सेक्टर जो कर रहा है वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों बचाना चाहते हो? किसान को क्यों दबाना चाहते हैं? उसका शोषण कंटिन्यू जो कर रहा है वो उसको क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हैं? जी वाडेकर साहब, बस 1 मिनट बोल दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई प्राइवेट सेक्टर का वकील यहाँ नहीं है हमारे सरकार में। ये गलतफहमी आप दिमाग से हटाइए। हम चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले और ये हमारा कोशिश रहेगा। और अगर आप समझे कि हम कॉर्पोरेट के साथ मिले, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर किसान को 100 रुपया ज्यादा मिलता है, हम तो चाहते हैं कि वही हम वही भाषा बोल रहे हैं। आपने बिल पास किया है। अरे सुनिए तो सही, सुन लीजिए मलिक साहब, आप बोल चुके हैं। किसानों को ये बिल चाहिए नहीं तो आप किसके कहने पे ला रहे हो? कॉर्पोरेट के कहने पे ला रहे हो ना। आप कहते हो हमारा कोई संबंध नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से हटाइए। ये कोई कॉर्पोरेट के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसानों को मैक्सिमम प्राइस मिले। ऑलराइट, ओके। तो फिर एमएसपी घोषित क्यों नहीं करते जब आपको लगता है? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, बस बातचीत करिए। ट्रैक्टरों से तो बातचीत नहीं हो सकता ना, ट्रैक्टरों से बातचीत करिए। पुष्पेंद्र जी, अगर कल हल नहीं निकलता है तो क्या 26 जनवरी को किसान राजपथ पे होगा? देखिए, हम देश के किसी भी बड़े पर्व को कोई डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाना चाहते, जनता को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। हम खुद कष्ट में हैं। अपनी चुनी हुई सरकार के सामने अपना कष्ट बताने के लिए किसान आए हैं। आप उसको किस तरीके से सुनना चाहते हैं? अब ये आंदोलन और तेज होगा या क्या प्रारूप लेगा, ये तो मैं आज डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन सरकार को तत्काल इस पे एक्शन ले लेना चाहिए। वेल, लेट्स जस्ट होप, मतलब यही आशा करते हैं कि कल कोई हल निकले और आप सब घर जाएं और दिल्ली रैली में ना देखें, 26 जनवरी की परेड में ना देखें, पर ऐसे ही देखें, 26 जनवरी की परेड को देखें जो किसान है यहाँ पर, और कोई हल जरूर निकले और सरकार आपकी बात, मतलब जैसा भी है, कोई मिडिल ग्राउंड जरूर निकले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू मिस्टर वाडेकर, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस। अ क्विक ब्रेक, अप नेक्स्ट इज राहुल कंवर। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.